Hello, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so I'll share my screen and these questions, there are 5 questions. You have to implement these. Last one is the theory question. We will discuss it. But first of all, you have to open your compiler. If you have SQL in your systems, very good. If you don't, then you can open your compiler and you can implement these SQL queries. Okay. Ma'am, can we do an online compiler also? Yes, you can. Okay. So the very first question is list the ways. The ways. It means it could be one or more solutions. So list the ways to get the count of records in a table. You have to get the count of records. It means you have to you will be having an output which will be saying that these particular records are present in the table. So first question, second question, write a SQL query to find the names of employees. You have to find the names of the employees that begin with A. So this is the SQL query that we talked about in our previous session. Then third question is write a SQL query to get the third highest salary of an employee. I have already told you about this in the last class. Then the fourth one, how can you fetch alternative records from a table? You have to find out that how you are going to find the records in a alternative fashion. तो उसके लिए क्या query होगी? And the last one we will discuss is what would be the main difference between SQL and PLSQL. So hurry up, perform all these questions, especially these 4-1. Then we will discuss the last one. And those who have completed, do tell me the query. We will see मैम whether it कितने is दिन में देना आपको ये? 10 minutes, hardly 10 minutes. Okay, ma'am. Hmm. Everyone, please hurry up. We do have other questions also.
Okay, last 3 minutes. So the first question is, list the ways to get the count of record in a table. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड आउट द वेज, वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल क्वेरीज दैट कुड सॉल्व आवर पर्पस. So simply we have to find out the count. What would be the query? Ma'am, select count asterisk from table name Yes, and that particular asterisk would be under brackets. Yes. So this is the right. Any other option available for this? Anyone else? मैम यही करा है. यही करा है. Okay. So किस किसने किया है? आउटपुट क्या आया है इसका? रन करके देखा? Yes, ma'am. मैम मैंने 2 बनाई थी तो वो 2 शो कर रहा था उसमें. 2 नंबर शो कर रहा है. ठीक है, इसका आउटपुट हो गया आपका सेलेक्ट काउंट आस्ट्रिक फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम होगा. फाइन. यस मैम. हाँ, कोई कुछ कह रहा है? इसके अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास में? मैम सेम तरीके से काउंट को कॉल करके करते हैं. सेम तरीके से काउंट फंक्शन को कॉल किया मैम, और हम्म. पूरी रो को उसमें इनिशियलाइज करके उससे काउंट कर दिया. अच्छा, तुम कह रहे हो कि तुमने मैम सेम फंक्शन, तरीका है मैम. सेम, हाँ काउंट फंक्शन है ना मैम, एक उसी को हाँ कॉल काउंट करके. फंक्शन है. ऐसे ही कोई भी आप फंक्शन बना सकते हो और आप उसे जस्ट कॉल कर सकते हो. ठीक है, वो थोड़ी सी लंबी है बस क्वेरी. एंड अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी है तो उसके लिए कौन सा होता था? रो काउंट. अच्छा चलो ठीक है, आपने सिंपल अभी बनाया है, वेल एंड गुड. दूसरा करते हैं फिर बताते हैं इसको. राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज दैट बिगिन विद ए. इसका तो बहुत सिंपल है. select column name जो भी नेम है from employee table name where name like a quotes में मैम a percentage. ए परसेंटेज बिल्कुल ठीक है. chemical. हाँ, तो इसका हो गया आपका सेलेक्ट. अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलम उठाना चाहते हैं तो वो कॉलम नेम लगाएंगे, अदरवाइज जैसे मैं आस्ट्रिक लगा देती हूँ. फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम हो गया. देन इसके बाद आपको क्या करना है? where condition yes, लगानी है. where employee name like quotes में मैम a%. जो भी आपका एम्प्लॉय नेम कोर्स जिससे स्टार्ट करना है उसका ए परसेंटेज. परसेंटेज बिल्कुल सही. ये ध्यान मैम रखिएगा. like रह गया था. like. ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग.
जब भी आप इस तरह से यूज करेंगे, आपको कोई फाइंड आउट करनी है क्वेरी, स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के भी बहुत मेथड है, ठीक है। तो आप चाहे पूरा वर्ड या आधा वर्ड लिख के, जितना वर्ड आपको मैच करानी है, मतलब जितनी स्ट्रिंग आपको मैच करानी है, वो आप कर सकते हैं इसमें। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट a SQL query to get the third highest salary। थर्ड हाईएस्ट सैलरी लिमिट 2,1 कर देंगे कल की तरह। कल की तरह हमने क्या लिखी थी क्वेरी, बताओ कोई, क्या क्वेरी बनाई थी? सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी, DESC डिस्प्ले। सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी, DESC, DSC, लिमिट 1 ऑफसेट 2। लिमिट 1 ऑफसेट 2। मैम ऑफसेट 3 भी हो सकता है इन केस अगर रिकॉर्ड 0 की जगह 1 से स्टार्ट होंगे तो। और कोई इसमें कोई चेंजेस, कोई करना चाहता है इसमें चेंजेस? मैम 2,1 नहीं होगा? 2,1 बताइए। नहीं, अगर हमको हाँ, सिर्फ एक ही वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो 1,2। अगर हमको एक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, पहले लिमिट आती है, बाद में ऑफसेट आता है ना। क्या बताया था कल मैंने? किसी और ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं? किसी ने नहीं किया अटेम्प्ट, या अभी हुआ नहीं है? रिपीट करना। आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ओके। यस मैम। हाँ, तो उसका क्या लिखा? मैम आपने कल बताया था ना, बस नंबर चेंज कर देंगे, बाकी तो सेम रहेगा। नंबर, चलो नंबर में क्या लिखा, लिमिट में क्या लिखा है? मैम 1 से लेके 2 तक, क्योंकि आपने कल सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए 1 to 1 लिखा था, तो हाँ, थर्ड निकालना है तो 1 से 2 तक। और 2,1 कौन कह रहा है? मैम मी। कैसे कह रहे हो 2,1? मैम फर्स्ट वाले में तो हम लिखते हैं जैसे हमारे इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3, तो हम्म, अगर हमारे को थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो हम 2 लिखेंगे, और हम्म, 1 होता है हमारा कि हमारे को कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम्म। हमारे को थर्ड हाईएस्ट मिलेगा और सिर्फ वही प्रिंट होगा, इसलिए 2,1। और प्रियंका तुम कह रही हो 1,2? यस मैम, बिकॉज जो लिमिट होती है वो पहले लिखी जाती है, जो लिमिट होती है वही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो लिमिट 1 और ऑफसेट 2। हम्म। तो अब क्या लग रहा है, क्लैश कहाँ आ रहा है इस चीज में? दोनों क्वेरी से आंसर आया तुम्हारा? किसी ने चेक किया? मैम मेरा आया है। नहीं, 1,2 इज ओके। 2,1 से आंसर क्या आ रहा है? 2,1 से क्या होगा, आई थिंक इसमें जो आपकी सेकेंड रो है वो स्किप कर देगा वो, और सिर्फ एक ही रो आपको रिटर्न करेगा। चला के देखो 2,1 अगर चलाया है तो। 1,2 इज ओके, 1,2 से आउट आपका आउटपुट आ जाएगा, क्वेरी रन करेगी। इसको निकालने के बहुत तरीके हैं। यस मैम, मैंने अभी 2,1 रन करके देखा तो उसने जो हाईएस्ट सैलरी थी वो हटा दी और सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट डिस्प्ले कर दी। हाँ, तो उसने वही किया 2,1 में। उसने जो मैंने आपको भी बताया, 1,2 में उसने आपको आउटपुट दिया, ठीक है। 2,1 में उसने दो रो आपकी स्किप करी होंगी, एक ही रो आपको दे रहा होगा वो, या जितने भी, मतलब जो भी उसका जो पहला है, बिकॉज हम लिमिट उसने लगा दी हमने 2,1, तो एक से लेके वो कहाँ तक चला, 2 तक चला। चलो, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ जी। मैम इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, कैसे पता चलता है? क्या चीज 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 से? रिकॉर्ड। हाँ। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कि कौन बताएगा? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड आउट
कि रिकॉर्ड आपका कहाँ से स्टार्ट है? यस, डोंट टेल मी आपको नहीं पता। प्रियंका, नहीं पता मैम। ऋत्विक, नहीं पता मैम, नेक्स्ट कर रहा था, नेक्स्ट हो गया मैम, ये वाला क्या क्या नेक्स्ट क्या? मैम फेच रिकॉर्ड वाला हो गया था, ये जो आप भी पूछ रहे हैं वो नहीं। इंडेक्सिंग करवाई थी। इंडेक्सिंग में क्या होता है? याद करो। कैसे करोगे तुम लोग? इंडेक्सिंग में क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज इंडेक्स? वैसे मैंने तुम लोगों को आइडिया दिया था। मैम इंडेक्सिंग में वो कुछ थोड़े बहुत कॉलम्स को मिला के एक छोटी सी टेबल बना देते हैं। हम्म आपने लास्ट तो ये बताया था कि वो फास्ट रिट्रीवल के लिए यूज होती है। हाँ, डेफिनेटली फास्ट रिट्रीवल के लिए यूज होती है। आप क्रिएट करते हो इंडेक्स, जो भी आप इंडेक्स नेम देना चाहते हो, और जिस भी आप कॉलम का बनाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई इंडेक्स बनाना है, सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल हो गया मेरा विद, और हम उसमें वहां पे मतलब ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिख देते हैं और इंडेक्स नेम लिख देते हैं। सो जो विद स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से आप जो है इंडेक्स क्रिएट कर पाते हो। अब बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चले कि मेरा जो डेटाबेस में रोज है वो कहाँ से स्टार्ट है। मतलब लिमिट मैं जो दे रही हूँ वो मुझे 0 से देनी है या 1 से देनी है। तो हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड? तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, अदरवाइज बता तो मैं दूंगी। इंडेक्स हमने पता चल गया, क्वेरी भले ही ना आ रही हो, लॉजिक बनाना सीखो आप। देखो, जो काउंट आस्ट्रिक आपने यूज किया था, काउंट आस्ट्रिक आपको क्या देता है? आपको नंबर ऑफ रोज निकाल के देता है, ठीक है। अगर आपने काउंट आस्ट्रिक लगा दिया विद लिमिट उसमें दे दी 0, अगर मान लीजिए आपने क्वेरी लिखी सेलेक्ट काउंट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, वेयर कोई भी आप कंडीशन लिख दीजिए और लिमिट दे दीजिए 0, व्हाट डज इट मीन? चलो इतना बताओ। मैम क्या? मैंने क्या किया, मैं लिख के दिखाती हूँ तुम लोगों को, एक मिनट। सेलेक्ट count asterisk from whatever the table name where कोई भी आप कंडीशन लगा रहे हैं, आपने लिख दिया है लिमिट 0। अब क्या होगा? लिमिट आपने 0 दे दी है। हम्म डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले होगा, एक एक रो आपके पास में आएगी। लिमिट 0 जब आप लगा देते हो तो आपको कुछ रिटर्न नहीं आता, दैट मीन्स इट इज एन एम्प्टी सेट। सो ये किसके लिए यूज करते हो आप लिमिट 0? जस्ट टू चेक द वैलिडिटी कि वो क्वेरी ठीक है या नहीं है, ठीक है।
तो अगर आपको मान लीजिए जो भी आपके रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हैं आपको चाहिए तो आपको लिमिट 1 करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, कभी भी लिमिट 0 आप लेके चल रहे हैं तो वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। तो हमेशा आपका लिमिट जो है, जो ऑफसेट वैल्यू आप बता रहे हैं, वो आपकी 1 से ही स्टार्ट होगी। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो एक एक आप ये समझ लीजिए कि that could be used to check the validity, that's it, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक, चाहे तो रन करके देखो लिमिट 0 में वो क्या दे रहा है। it will run your query but it will not do any counting, simply it won't return you any kind of data, so it is just for the validation। तो हमेशा ध्यान रखना लिमिट 1 से आप लगाएंगे। तो आपको पता चल गया कैसे करना है। लिमिट 1 ही लगाना है, 0 से नहीं होता। नहीं मैम, वो अनुराग ये पूछ रहा है कि जो ऑफसेट है ना वो हमने 2 डाला है, मतलब हमने 0 1 2 3 करा है। तो ऑफसेट, मैम वो हाँ 0 से, तो जो ऑफसेट है वो 0 1 2 करके आया हमारा 3 पर। जो तुमने 1,2 डाला है। यस मैम। हाँ, फिर क्वेश्चन क्या है। मैम तो ये क्वेश्चन है कि मैम हमने 0 से स्टार्ट करा अपना रिकॉर्ड को काउंट करना। हम्म ऑफसेट हमने जब 2 डाला तो हमने 0 से रिकॉर्ड को स्टार्ट किया, अगर हम 1 से करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप Like- उसमें 1, हाँ आप उसमें 1 लिखोगे ना बच्चे। क्या मेरे को ये समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे जो है एक टेबल गिवन है और मुझे क्या करना है कि आई हैव टू फाइंड दी रो 1, एक रो निकालनी है, तो मैं सीधा सीधा ऑफसेट 1 लिखूंगी। ऑफसेट 1 रोज, तो ऑफसेट 1 रोज का मतलब ये होगा कि आपको एक एक रो निकल के आएगी उसमें से। अगर आपको मान लीजिए ऑफसेट जो है 2 रोज निकालनी है, ठीक है, तो आप उसमें जो है सीधा सीधा वहां पे 2 मेंशन करोगे कि मुझे 2 रोज चाहिए। मैम क्लियर। जैसे हमने 1,2 लिखा तो 1 हाँ, मतलब कि एक रिकॉर्ड शो होगा और 2 मतलब थर्ड हाईएस्ट। तो वो हम पूछ रहे हैं कि हम 2 इस बेस पे लिखा है ना कि 0 से स्टार्ट हुआ इंडेक्स में। अच्छा तुम इंडेक्स की बात कर रहे हो, ऑफसेट। हाँ हाँ, जो 2 लिखा है हमने उसको हमने 0 अज्यूम किया है कि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हमें पता हाँ, कैसे चलेगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है। नहीं वो हमेशा आपका 0 से ही स्टार्ट होगा। जैसे आपने लिखा, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 1,1, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ से चला, 0 to 1 चला, ठीक है। तो ये एक 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 बार ही चलेगा। जो लिमिट क्लॉज है आपका, लिमिट क्लॉज जो है उसमें आप मेंशन करते हो कि आपका पर्टिकुलर जो रिट्रीवल होना है रोज का, वो कहाँ से कहाँ तक जाना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो स्टार्टिंग 0 से ही होती है और वो कहाँ तक जाएगी, जो भी आपकी वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अभी 2,1 कह रहे हो आप 2,-1 लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा कि 2, अगर -1 लिखा है तो क्या मतलब होगा। -1 आप इसमें चला सकते हो, अच्छा माइनस लिख सकते हो। देखो लिमिट मैं बता देती हूँ, रुको 1 मिनट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ये सिस्टम हैंग हो गया आई थिंक। यस मैम। नहीं मैम, आ रही है, आ रही है। ये सिस्टम क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुको। इसमें ये बहुत दिक्कत है। जैसे मैं अभी, चलो जब तक ये होता है मैं बता देती हूँ। नॉर्मली ऑफसेट आपका स्पेसिफाई करता है फर्स्ट रो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो आपकी होती है 0 नॉट 1, ध्यान रखिएगा। रोज हमारी हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं
जो काउंट है, रो काउंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, अगर मैंने लिखा ऑफसेट 3 या मैंने लिख दिया मान लीजिए 3,4 लिमिट 3,4, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट होना है, 3 से स्टार्ट होना है। कहाँ तक जाना है आपको, रो काउंट कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो 3 से स्टार्ट होने का मतलब है यू वुड नॉट कंसिडर 3, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 4। सो 4, 5, 6, 7 ये रहेगा। अगर आप लिमिट के साथ ऐसे लिख रहे हो, मान लीजिए मैंने लिख दिया है लिमिट 0 कॉमा और जो भी आप रो काउंट देना चाहते हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको 0 से स्टार्ट होना है, यानी कि फर्स्ट आपकी वैल्यू आएगी और जो भी आप रो काउंट दे रहे हो। तो मैं आपको 1 मिनट, ये इनेबल हो गया है, हाँ। देखो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा है लिमिट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0,2। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये क्या करेगा, जो भी आपका है टेबल जो है 1 2 3 4 काउंटिंग ऐसे ही जाएगी 1 2 3 4, रो जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, कभी भी 1 से नहीं स्टार्ट होगी। सो दिस इज द इंडेक्स, जो 0th इंडेक्स है ये। तो मैं कह रही हूँ 0 से लेके 2 तक जाना है, तो यानी वो क्या करेगा 1 2 ये दो काउंट कर लेगा। अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो 0 वही एंड 1। एरे वाला हिसाब है ना, हाँ बिल्कुल एरे एरे वाला, में होता है। 0 और 1 अगर आप इंडेक्स देखोगे तो, बट डोंट गो फॉर द इंडेक्स बिकॉज उससे कंफ्यूजन हो जाता है, गो फॉर द काउंट। 0 to 2 मतलब आपको सीधा सीधा 2 तक काउंट करना है। अगर आपने लिखा 1,2 तो आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो एक रो निकाल के दे देगा। अगर 2 रो होंगी तो 2 रो निकाल के देगा, मतलब मैक्सिमम वो यहीं तक चलेगा 2 तक। अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए 3,4 लिमिट, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्ट करना है उसे 3 से, 1 2 3, तो 3 के बाद वाले कहाँ तक जाना है और नेक्स्ट 4, यानी 4 5 6 7 ये काउंट होंगे इसमें। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इंडेक्स की बात करोगे फिर आप, तो इंडेक्स आपका और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया, यानी 4th इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, लिमिट आपने डिफाइन करी है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे आपने लिखा है 1,2 तो इसका मतलब उसका इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स है। 0 ऐसे आप 0,2 लिख के देखो आउटपुट क्या आ रहा है, क्या दे रहा है वो, ये 0,1 लिख के देखो क्या आउटपुट दे रहा है आपको। जीरो को कभी वो दिस इज लाइक नथिंग, अगर आप 0 लिख भी रहे हो तो उसे लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। मैम हाँ, मैम आप -1 इंडेक्स पूछ रहे थे ना? -1 एक्चुअली एरर दे देता है, -1 आप यूज नहीं करते, ठीक है। मैम अगर तब आप स्लाइसिंग में, जैसे हम पाइथन में हम स्लाइसिंग करते थे तब तो लास्ट इंडेक्स बोलते थे हम हाँ, उसको। तब आपको वो लास्ट इंडेक्स देगा फॉर द पाइथन। अगर आप डीबीएमएस में लिमिट में लगा रहे हो तो वो आपको एरर थ्रो करके देगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैम समझ नहीं आया। नहीं आया समझ, चलो दोबारा बताती हूँ, देखो। मैम इसमें जैसे 1,2 है, हम्म तो 1 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट इंडेक्स को चूज कर रहा है? देखो आपका क्या जो लिमिट होता है, लिमिट क्लॉज, सबसे पहला हमें पता है लिमिट क्लॉज कैसे लिखा जाता है, ऑफसेट एंड रो काउंट, ठीक है। सबसे पहले आप उसे ऑफसेट देते हो, फिर आप उसे रो काउंट देते हो। व्हाट इज ऑफसेट, ऑफसेट स्पेसिफाइज द फर्स्ट रो दैट इज टू बी रिटर्न। ऑफसेट किसी भी पहली रो का 0 होता है, कभी भी 1 नहीं होता। तो फर्स्ट रो का अगर मैं ऑफसेट की बात करूं, बाय डिफॉल्ट वो 0 रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए लिमिट 2 बस,
इसका मतलब क्या है, ये आपको दो वैल्यूज निकाल के दे देगा, 1 2, दो वैल्यूज। अगर मैंने लिखा लिमिट 0,2, इसका मतलब भी ये है कि ये आपको दो वैल्यूज निकाल के देगा। दिस इज द ऑफसेट, जो कि बाय डिफॉल्ट 0 ही है। अगर आप लिख रहे हो लिमिट 1,2, so it means you are starting from 1, you are ending to 2, and there is only a 1 row in between them. अगर इन जो भी आपने कंडीशन लगाई है ये दोनों में फुलफिल है, तो फिर वो दोनों आ जाएंगी आपके पास में। अदरवाइज देयर वुड बी ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ लिमिट 3,4, इट मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज द ऑफसेट। कहाँ तक जाना है, 4 और उसमें आपको जोड़ने हैं एक्स्ट्रा, या 5,6, वट एवर यू आर राइटिंग। तो रो काउंट क्या हो गया, वो बता रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आप कितनी दे रहे हो। अगर मैं लिख रही हूँ 1,2, तो मैक्सिमम 2 आनी चाहिए मेरे पास में, 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, और मिनिमम 1 रहेगी रहेगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 to 2 इसका मतलब हो गया, अगर 0 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो 1 0 1 2, तो बीच में मेरा 1 रहेगी ही रहेगी। गेटिंग मी, ऑफसेट आपका हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। आप अगर स्पेसिफाई कर रहे हो ऑफसेट को विद अ नंबर, इट मींस यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टैक, कि वहां से आपको स्टार्ट करना है। समझ में आया या नहीं आया अभी भी? मैम आ गया। अगर मेरे पास में ये स्टैक है और मैंने लिखा है लिमिट 2,3, तो इसका मतलब है दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5, तो ये यहां से चला 2 से कहां तक जाना है, मैक्सिमम 3 रोज। तो 2 से चलने के बाद मैक्सिमम 3 कितनी बची, 1 2 3, तो ये रिटर्न करेगा 3 4 एंड 5 को। अगर मैंने खाली लिखा है लिमिट 2, इसका मतलब है ये कहां से चल रहा है, 0 से चल रहा है। तो कोई भी फर्स्ट रो जो है उसका इंडेक्स 0 है बाय डिफॉल्ट ऑफसेट, तो यानी वो आपको रिटर्न क्या करेगा, 1 और 2, मैक्सिमम 1 और 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं इसे 2,3 कर दूंगी, नाउ दिस इज माय ऑफसेट, फिर आपको ये यहां से स्टार्ट करना है 2 के बाद से। लिमिट 1,2 में स्टार्ट करना है 1 से, एंड करना है 2 पे, तो इसमें आपको एक ही रो मिलेगी। समझ में आ गया या अभी भी डाउट है किसी को? मैम मतलब जो सेकंड वैल्यू है वो नंबर ऑफ रोज है जो मैं आउटपुट में दिलानी है। यस, जो सेकंड वैल्यू है वो रो काउंट है, नॉट नंबर ऑफ रोज। दैट वुड बी योर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट कुड बी रिटर्न्ड बाय एसक्यूएल क्वेरी। तो अगर वहां पे 4 5 लिखा है, इसका मतलब 5 लिखा है, तो यानी मैक्सिमम 5 रोज आ सकती हैं। हमेशा आएंगी ये जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम 5 आ सकती हैं। जो पहले लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज योर ऑफसेट वैल्यू, यानी विच स्पेसिफाइज what would be the first row that would be going to be returned. तो यहाँ पे आप लिमिट इस तरह से यूज करोगे, ऑफसेट कॉमा रोज, नंबर ऑफ रोज जो आपको रिटर्न होगी। नेक्स्ट तो मैम थर्ड वाले क्वेश्चन का फिर फाइनल आंसर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी क्या लगाया था आपने, 1,2 किसने लगाया था 1,2? मैम मैंने 1,2 नहीं लगाया था, मैंने लिमिट 1 ऑफसेट 2 लगाया था। मैम जब हम कॉमा लगाएंगे ना तो 2,1 होगा वो। अगर आप कॉमा में 2,1 यस, मैं वही बता रही थी। अगर आप कॉमा अगर तुमने ऑफसेट पूरा लिखा है, ऐसे अगर आप लिख रहे हो ऑफसेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आप ऑफसेट लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अब ये वैल्यू दे रहा है कहाँ से आप
स्टार्ट कर रहे हो, रो काउंट कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या लिखा है, लिमिट 1 मैम जैसे मैंने चैट में लिखा है, और ऑफसेट लिखा है आपने 2, ठीक है। लिमिट 1 ऑफसेट 2 का मतलब ये है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, लिमिट 1 का मतलब हो गया दैट इज 0,1। तो यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड इट विल बी गोइंग टू रिटर्न यू एटलीस्ट एट मोस्ट 1 रो। ऑफसेट 2 मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 के बाद से, तो यानी 1 2 और अब यहां से स्टार्ट करना है 2 के बाद से, क्योंकि हम डिसेंडिंग में उसे पहले कर रहे हैं। हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। मेरे एक के 15,000 हैं, एक के 12,000 हैं, एक के 10,000 हैं, देन एक के 8,000 है। मान लो ये टेबल बनी डिसेंडिंग ऑर्डर की। अगर आप लिमिट लिख रहे हो तो लिमिट हो गया 2,1, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम विच 1 2, इसके बाद से आपको स्टार्ट करना है, दिस इज द ऑफसेट। और रिटर्न क्या करवानी है, मैक्सिमम 1 रो, यानी कि दिस वन। अगर आप ऐसे लिख रहे हो लिमिट 1 ऑफसेट 2, इसका मतलब भी यही है कि आप मैक्सिमम 1 रो लिमिट लगा दी आपने, और ऑफसेट 2 मतलब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया 2 के बाद से, तो आपको ये थर्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया आप? यस मैम। ओके, नाउ फोर्थ, हाउ कैन यू फेच ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स। मुझे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं बट इन द ऑल्टरनेटिव फैशन। मैम मॉड फंक्शन लगा के। हाँ मैम, mod 2 हो जाएगा। वेरी गुड, मुझे लग रहा था कि नहीं पता होगा, बट अगर आपको पता है। मैम मॉड में दोनों तरीके से हो सकता है कि इवन कर सकते हैं, ऑड भी कर सकते हैं। कैसे, मैं समझी नहीं। मैम जैसे कि अगर हमको 1 3 5 करके चाहिए तो हम्म, हम मॉड और एम्प्लॉय आईडी बाई 2 इक्वल्स टू 1 कर देंगे अगर हमें ऑड में चाहिए। और अगर हमें इवन में चाहिए तो हम मॉड एम्प्लॉय आईडी 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो उससे हमें इवन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा हाँ वो ठीक है, वो तो आपका डिपेंड करता है कि आउटपुट, ओ सॉरी, रिमाइंडर क्या बचता है उस पे। यस मैम। तो इसमें किसी को कोई डाउट था? चलो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल। क्या डिफरेंस है एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल में? पीएल इज योर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएल? मैं श्योर नहीं हूँ, प्रोसीजरल एसक्यूएल था। प्रोसीजरल लैंग्वेज, यस। हाँ प्रोसीजरल। ठीक है, तो एसक्यूएल आपको सबको पता है कि एसक्यूएल एग्जीक्यूट्स योर सिंगल क्वेरी एट अ सिंगल टाइम। ये ध्यान रखना कि एसक्यूएल जो है वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, जबकि पीएल क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये क्या कर रही है, ये आपके ब्लॉक वाइज ब्लॉक एग्जीक्यूशन करती है। प्रोसीजरल लैंग्वेज या पीएल एसक्यूएल के अंदर आपका एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक पूरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल इज वर्किंग एज एन इंटरप्रेटर। जबकि पीएल एसक्यूएल यू कैन रेफरेंस इट टू दिस कि हाँ ठीक है, मैं उसे इंटरप्रेटर लेके चलूँ और मैं उसे कंपाइलर लेके चलूँ। ठीक, ओ सॉरी मैं उल्टा बोल गई, राइट। एसक्यूएल इज योर कंपाइलर एंड पीएल इज योर इंटरप्रेटर। ये आपका बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इसके अंदर। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ और खास डिफरेंस नहीं होता, रिट्रीवल ऑफ डेटा वैसे ही रहेगा एज इट इज डिस्प्ले होगा। हाँ मैम एसक्यूएल इंटरप्रेटर होती है, एसक्यूएल में हम उल्टा बोल लाइन गई। बाय लाइन कोड रन कर सकते हैं। हाँ तो फिर मैं और पहले ठीक बोल रही थी इसका मतलब। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एसक्यूएल जो है वो रिट्रीव कर रहे हो आप उसकी हेल्प से, जो भी आपका डेटाबेस है उसमें आप डेटा वैल्यू रिट्रीव कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम पीएल एसक्यूएल जो है, आप ऐसा नहीं है उसमें रिट्रीव नहीं कर सकते,
आप डिस्प्ले करवा सकते हो, बट हम PLSQL को यूज करते हैं टू क्रिएट द एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस जो डेटा रिट्रीव करवाने में हेल्प करें। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि PLSQL के अंदर SQL क्वेरीज पहले से एम्बेडेड होती है, लेकिन SQL के अंदर PLSQL पहले से एम्बेडेड हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अगर मैं वैसे बात करूं SQL की, तो SQL को आप कह सकते हैं कि it can be used only when you need the data, when you want to view your data. और ये PLSQL का यूज होता है when you want to specify the data as well as you want to retrieve the data, मतलब क्रिएशन में भी और उसके रिट्रीवल में भी, जबकि SQL खाली रिट्रीवल के लिए, नॉट फॉर द क्रिएशन। तो ये डिफरेंस है आपके PL और SQL में। PLSQL का कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? तुम लोगों ने वैसे काम किया हुआ है इस पे? ओरेकल। ओरेकल, क्या ओरेकल? मैं ओरेकल के RDBMS में PLSQL वर्क करती है ना। RDBMS में PLSQL वर्क करती है, बिल्कुल ठीक बात है। और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप्स हैं, उनमें जो भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पे आपकी एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, वो PLSQL पे पोर्टेबल है सारी। ठीक है, तो ऐसा, और अगर मान लीजिए कोई पूछता है विच वन इज बेटर, कौन सी अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनमें से कंपेयर कर सको। आप दोनों के यूजेज अलग हैं, दोनों अपने एरियाज में मास्टर्स हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस हैं, दोनों का अपना अपना एरिया है इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि PLSQL जो है वो, मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे अभी बताया ओरेकल में यूज होती है, तो यस ओरेकल में भी, ओरेकल के डेटाबेस में वो यूज हो रही है। आई थिंक उसका वर्जन 7 वर्जन शायद चल रहा होगा, तब से 6 या 7 अब आया होगा। तो वहां पे वो रिस्ट्रिक्टेड है उस कॉरपोरेशन के लिए। ठीक, आप उसे हर जगह नहीं फ्रीली यूज कर पा रहे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर ये 2 टेबल्स हैं मेरे पास में। आपको ज्यादा कुछ नहीं है कि ये टेबल्स बनानी है या ऐसा कुछ है। टेबल्स आप ध्यान से देख लीजिए कैसे बनी हुई हैं। क्वेरी मैं आपको बताती हूँ, आपको किस क्वेरी का आंसर मुझे देना है। सबसे पहले बहुत बहुत ही छोटी सी क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द एम्प्लॉय ID and the names of the employees who are working under the manager of 986. कैसे फाइंड आउट करोगे? मैम क्वेश्चन यही है ना कि हमें नेम्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए जो 986 आईडी बस के। बस बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ स्टार्टिंग में। मैम तो ओरली बता दो या? हाँ, ओरली बता दूं, क्योंकि ये टेबल थोड़ी बनानी हो जाएगी मुश्किल। मैम हम सेलेक्ट फुल नेम चाहिए हमें, क्योंकि हाँ, फुल नेम ऑफ नेम द चाहिए। एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर मैनेजर आईडी इक्वल टू 986। सब कंफर्म कर रहे हैं इससे? कोई चेंज तो नहीं चाह रहा है इसके अंदर? नो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या, सेमीकोलन लगाना भूल गए थे। हाँ, ओके, यस डेफिनेटली। अच्छा, एक क्वेश्चन और। अगर मुझे ये देखना है that you have to find out those employees whose salary lies within the range of, मान लीजिए 9,000 to, not 9,000 to 15,000। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मेरे पास में ये 2 आउटपुट आएंगे। कैसे आएंगे? सैलरी लाइज बिटवीन व्हाट? 9,000
से लेके 15,000 के बीच की सैलरी के लोग चाहिए मुझे। अब यू हैव 2 टेबल्स और मुझे नाम चाहिए उनके। Come on, this is very easy. अच्छा, ऑपरेटर कौन सा यूज होगा? मैम डॉट ऑपरेटर Between. हाँ वो तो बिटवीन लगेगा Between. मैम, पर एक एक को पहले हमें मतलब जैसे एम्प्लॉय डॉट EMPID इज इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट EMPID, वो पहले करना होगा ना, उसके बाद हमें एंड करके कंडीशन लगानी है। ये कुछ ज्यादा बड़ा है, इससे छोटा तरीका भी है। बिटवीन तो मैम वही रहेगा जो प्रियंका कह रही है कि मतलब बिटवीन 9,000 एंड 15,000 जो कंडीशन है। दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैम उनका सेम मैचिंग वाला तो हमें लिखना पड़ता था, एम्प्लॉय डिटेल डॉट EMPID। ठीक है, चलो आई एग्री, जो भी आप कह रहे हैं ठीक होगा। मैं कह रही हूँ आप इसे 2 लाइन में खत्म कर सकते हो। सेलेक्ट EMPID कॉमा सैलरी, हमने कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, हमने EMPID सेलेक्ट करा है, सैलरी सेलेक्ट किया है। आगे क्या आएगा? फ्रॉम, कहाँ से करना है हमें? Employee details and employee comma employee salary. एम्प्लॉय सैलरी, आगे क्या आना चाहिए? Comma employee details. जरूरी है उसे डालने की? मैम मैम नेम चाहिए ना हमको, आपने नेम बोला था, EMP नेम। ऊपर वहां पे आपने लिखा नहीं है। एम्प्लॉय, क्या नाम था इस टेबल का? डिटेल्स, वेयर सैलरी बिटवीन 9,000 and 15,000। क्या ये चल जाएगी? मैम मैं इसका श्योर नहीं हूँ। मतलब Sure. मैंने डिफरेंट तरीके से करा था ना, मेरा थोड़ा डिफरेंट है इसी को। सब क्वेरी लगाई ना तुमने? हाँ मैम हाँ। सब क्वेरी के साथ लगाया, तो इसमें भी हमने सब क्वेरी ही लगानी है, बट नॉट, मुझे नहीं लगता कि वो उतनी बड़ी की जरूरत होगी। मैम जैसे अब यहाँ वेयर मैम आपने यहाँ लिखा है, मतलब मैचिंग हमें करानी पड़ेगी शायद, कि जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट EMPID इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट EMPID एंड सैलरी। एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल्स टू EMP। अच्छा ठीक है, तुम जा रहे हो कि हम पहले जो है इसको EMPID हम मैम वो मैच करवा लें, ये और ये मतलब मैच जो कराएं। उसका प्राइमरी की है जो फॉरेन की और प्राइमरी की को लेना चाह रहे हो तुम? अच्छा, फॉरेन की तो है ही नहीं इसमें, दोनों प्राइमरी की है। हाँ मैम इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा वो, बट मेरे को हैबिट है, अगर अलग होता है तब लिखना पड़ता। दोनों सेम है इसमें। ओके, मेरा नेट चला गया अगेन। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। ठीक, तो सिंपली जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यू विल बी एबल टू सी बोथ आर सेम, एम्प्लॉय आईडी जो है वो दोनों में हमारे सेम है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव फॉरेन की हियर। तो हम सिंपली इस क्वेरी को लिखेंगे और हमारी ये रन करेगी, हमें एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी आराम से, जो 9,000 से 15,000 के बीच में है। फिर हम बाहर चाहें तो उसकी ये जो है, दिस इज, यू कैन से दिस इज द सब क्वेरी। आप इसके बाहर जो है सीधा सीधा सेलेक्ट नेम करके लिख सकते हैं कि सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम जो भी आपका एम्प्लॉय डिटेल्स है, और उसके ब्रैकेट में ये आपकी सब क्वेरी बस। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? मैम लिख के दिखा दो उसमें क्लियरली। लिख के दिखा मैम दे, समझ नहीं आया। रुको लिख के दिखाते हैं।
कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, आपको नेम लेना है, फुल नेम, फ्रॉम, और इसका नाम क्या था? एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स। अब आप यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, क्या लिखेंगे? अभी तो बताया था, EMPID, सैलरी, वेयर, यहाँ पे फ्रॉम रह गया, फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, वेयर सैलरी, बिटवीन 9,000 and 15,000। ठीक है, ये आपकी क्वेरी रन कर जाएगी। समझ में आया आप? यस मैम। एक क्वेश्चन और, आपको कोई मैम हाँ बताओ। मैं इसमें सब क्वेरी में हमने जो EIMP ID लिखी है उसकी वजह से टेबल ज्वाइन हो पा रहा है। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। सब क्वेरी में EIMP ID जो लिखी है EMPID जो लिखी है, हाँ उसकी वजह से टेबल ज्वाइन हो पा रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों में सेम है EMPID, है ना। अगर अलग होती तो जैसे ऋत्विक कह रहे हैं ना, डॉट ऑपरेटर यूज करके पहले हम वो करेंगे, सेलेक्ट करवाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में अलग अलग आईडीज हैं, डिफरेंट आईडीज हैं, तो तब उस केस में जो है मैं डिफरेंट आईडीज की वजह से मैं पहले उन्हें कंबाइन करूंगी, सेलेक्ट करवा के उन्हें चेक करवाऊंगी, मैच करवाऊंगी, और तब मैं फेच करूंगी। अगर मेरी सेम आईडी होती है तो मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत, सिंपल आस्ट्रिक, जो सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम है वहां पे वेयर आईडी। अब उसमें आपको क्या करवाना है, यहाँ पे जस्ट कंडीशन लिखनी है ब्रैकेट्स में। अच्छा, यहाँ पे वो भी तो आएगा, इन आएगा, IN, इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे तुम लोगों से पूछना है। आपके पास क्या है, ये दो टेबल्स हैं, कॉमन रिकॉर्ड आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे? यहाँ पे अभी नहीं दिख रहे हैं कॉमन, अब मान लो कि कॉमन रिकॉर्ड्स हैं इसमें, कैसे फाइंड आउट करोगे? मैम कॉमन का मतलब लाइक क्या मैच होना चाहिए पूरी रो? मतलब हाँ, कि आप ये समझ लीजिए कि आप रो बाय रो मैचिंग करा रहे हो, और कोई 2-3 रो आपकी कॉमन है पूरे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया कि हम रोज देख रहे हैं, तो मुझे कॉमन रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? वो तो मैम हम एक टेबल की निकालेंगे ना, मतलब रिडंडेंट रोज। मुझे दोनों टेबल में से देखना है कॉमन, नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन, मैम इंटरसेक्शन ही तो करेंगे। इंटरसेक्शन नहीं है वर्ड, मैम वर्ड इंटरसेक्ट है। वर्ड इंटरसेक्ट है। क्वेरी क्या रहेगी उसकी? मैम थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में नॉइज है, मैं क्वेरी बता रही हूँ। मैम इंटरसेक्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 एंड इंटरसेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम टेबल 2। इंटरसेक्ट, बस फ्रॉम टेबल 2, ये ठीक नहीं है। देखो क्या करते हैं, जब आपको इस तरह से निकालनी होती है, इंटरसेक्ट ठीक है बिल्कुल,
वर्ड इंटरसेक्ट ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा? यू हैव टू राइट सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम जो भी टेबल नेम है इंटरसेक्ट, देन उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे ये ना लिख के सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 2। इस क्वेरी से क्या होगा कि जो भी आपकी रोज कॉमन है, मान लीजिए ये रो कॉमन है किसी और रो से, दोनों वैल्यूज सेम है, तो वो आपको फेच करके दे देगा कि अगर दोनों टेबल में कोई रिडंडेंट आपकी रोज आ गई तो वो आपको फेच करके दे देगा। तो सिंपली आपको इंटरसेक्ट लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब इसमें क्वेश्चन क्या डिफर कर जाता है, कई बार वो पूछ लेते हैं कि अब आपको फाइंड आउट करनी है विच डज नॉट हैव द सेम रोज, तो उसका तो कोई पॉइंट नहीं बना कि डज नॉट हैव, इसका मतलब आप सीधा सीधा सा क्या करोगे, आपको इंटरसेक्ट नहीं लगाना ऑपरेटर। अब वो कहे कि नहीं आपको जो है रोज तो फाइंड आउट करनी है बट विदाउट यूजिंग द इंटरसेक्ट ऑपरेटर, तो क्या करोगे? इनर जॉइन। इनर जॉइन। और कैसे लगाओगे इनर जॉइन? हम वो नहीं पता मैम, कल आप बता रहे थे इनर जॉइन तो मैंने सोचा इनर जॉइन हो जाएगा। इनर जॉइन भी हो जाएगा, कुछ नहीं है, आप पूरी लिखोगे, क्वेरी लिखोगे और इनर जॉइन लगा दोगे जिस भी कॉलम से आपको लगानी है। तो मैं लास्ट में इनर जॉइन और एम्प्लॉय आईडी लगा दूंगी। तो लेकिन इनर जॉइन में एम्प्लॉय आईडी में क्या करेगा, वो ज्वाइन कर देगा और कॉमन जितने भी होंगे उन सबको उठा के दे देगा। अब मैं चाह रही हूँ ना तो मेरे पास इनर जॉइन हो ना मेरे पास इंटरसेक्ट हो, मुझे तब भी आउटपुट चाहिए। तब आप सब क्वेरी का यूज करोगे। कैसे लिखोगे? सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी इसका नाम है, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम, ये तो यही रहेगा, इसको सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम जो भी टेबल नेम है, टेबल 1, ठीक है। अब आपको इसमें आगे क्या करना है, सब क्वेरी इसमें कैसे बनेगी? वेयर एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे आप लिखोगे वेयर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि अब मेरी यहाँ पे क्या है, दोनों की एम्प्लॉय आईडी सेम है, तो मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगी एम्प्लॉय आईडी इन, और फिर ब्रैकेट में लिख दूंगी सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी इन, कौन सी हो गई अब आपकी, सॉरी नॉट इन, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम जो भी आपकी टेबल 2 है। तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी इतनी क्या करेगी, ये खाली वो क्वेरीज उठा लेगी, वो रोज उठाएगी, वो रिकॉर्ड उठाएगी जिसकी एम्प्लॉय आईडी इस टेबल 2 में ये है जितनी भी। ये यहाँ क्या करेगी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, तो ये यहाँ मैचिंग हो रही है अब दोनों की, और जो भी कॉमन होंगी वो आपको उठा के दे देगी। तो समझे, सब क्वेरी से भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। सेम चीज जैसे हमने उसमें पहले करी थी कि हमने जो है जब उसमें फुल नेम निकाला था, जब हमारे पास में जो सैलरी बिटवीन 9,000 to 15,000 थी, तो वही सेम क्वेरी हमने यहाँ पे चलाई है। समझ में आया? थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है तो डू लेट मी नो कि हाँ मुझे ये डाउट नहीं समझ में आ रहा है, इस क्वेरी को कैसे किया जाए। मैम नहीं मैम ये तो आ गया समझ। हाँ बोलो। मैम इसमें एम्प्लॉय आईडी और जो सेकंड टेबल एम्प्लॉय आईडी उनका मैचिंग हो गया ना, तो इसमें हाँ उन्हीं सेम की एम्प्लॉय आईडी मैचिंग। पे डिफरेंट रिकॉर्ड भी तो हो सकते हैं। हाँ मैंने आपको ये बोला, आप मान के चलिए कि जो है सेम है, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट है, आपको आउटपुट नहीं आ रहा, बट हम क्या लेके चल रहे हैं, हम सेम वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो जिनके एम्प्लॉय आईडी सेम है वो ये यहाँ पे क्या करेगा, पूरा पूरा उठा रहा है ना, आप आस्ट्रिक लगा रहे हो उधर, ये देखो सेलेक्ट आस्ट्रिक लगा रहे हो मैम आप जैसे उधर। एक टेबल 1 में 121 एम्प्लॉय आईडी पे कुछ और वैल्यूज हैं और नीचे वाली पे कुछ और है, तो रिकॉर्ड सेम नहीं है ना। आप समझे नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको वो रिकॉर्ड निकालने हैं जो सेम है।
अगर आपके पास सेम नहीं है तो आपको आउटपुट नहीं आएगा, सिंपल है। सेम है तो आपको इसी तरह से आउटपुट वो देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो क्या करेगा, यहाँ पे आप आस्ट्रिक उठा रहे हो, एम्प्लॉय आईडी ले रहे हो, एम्प्लॉय आईडी को मैच करवा रहे हो इधर से, जो जो सिमिलर आउटपुट रहे। अब वो कोई ओवरराइड थोड़ी ना कर देगा क्वेरी को, वो यहाँ पे भी वो एक तरह से ये वाला जो पोर्शन है, आप ये समझिए, ये तभी आपको आउटपुट मिलेगा जब ये सेम होगा दोनों के लिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पे कोई कॉलम नेम लिखोगे तब वो कॉलम नेम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप वो मैचिंग वाला काम करवा रहे हो कि पहले वाले की एम्प्लॉय आईडी और दूसरे वाले की एम्प्लॉय आईडी को आपने मैच करवाया है, बस। अगर रिकॉर्ड सेम है तो आपको आउटपुट पूरी की पूरी रो उठ के आपके पास में आ जाएगी, सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैम ये मतलब बस ये हम्म, कंप्यूटर बस एम्प्लॉय आईडी सिमिलर उनको रिटर्न कर देगा, बाकी पूरी रो में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं होगा उसको। नहीं, पूरी रो ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। अगर पूरी रो सेम है तो आ जाएगी, एंड रिडंडेंट जैसे डेटा उठ इस के आएगा। इन दो टेबल में एम्प्लॉय हम्म आईडी सेम है हम्म बट उनकी पूरी रो डिफरेंट है ना। पूरी रो डिफरेंट है, नहीं आएगा। मैं वही कह रही हूँ कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ आपको, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू फाइंड आउट दोज रिकॉर्ड्स which are having a common values between them. You have to write a query to fetch the common records between the two tables. तो कॉमन रिकॉर्ड्स निकालने के लिए आप इंटरसेक्ट यूज करोगे, इंटरसेक्ट नहीं है तो आप इस तरह से सब क्वेरी यूज करोगे। जब हम इंटरसेक्ट यूज कर रहे थे तब भी हम दोनों में सेलेक्ट आस्ट्रिक यूज कर रहे थे कि सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, इंटरसेक्ट सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम अनदर टेबल नेम। अगर वहां पे भी दोनों सेम होंगे तभी हमें मिल रहे थे। यहाँ पे मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि यू हैव टू मैच ईच एंड एवरी कॉलम। मैं कहाँ तक लिखती जाऊंगी क्वेरी फिर उस हिसाब से, अगर मुझे हर एक कॉलम को मैच करना है तो मैं ये थोड़ी ना फुल नेम इसके साथ चेक करवा रही हूँ, मैनेजर आईडी इसके साथ चेक करवा रही हूँ, नहीं, वो जरूरत नहीं है। आपने उसको पहले ही लिख दिया सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम, बस। उसके बाद आप एक पर्टिकुलर एंटिटी लोगे, उससे मैच करवाओगे, वो अपने आप पूरी रो चेक कर लेगा। मैम फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग इस कुछ भी टेबल रिटर्न के नहीं होगा। अकॉर्डिंग कुछ नहीं रिटर्न होगा। चलिए, अब इन क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिए, ये मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं क्योंकि आप काउंट आपसे पूछा जा सकता है, लाइक ऑपरेटर आपसे पूछा जा सकता है, हाईएस्ट सैलरी वाला क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो अब आप किसी कोई आपसे कहे nth हाईएस्ट सैलरी निकालने हैं तो आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है। ठीक, आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। पहला ऑफसेट है, दूसरा नंबर ऑफ रोज है, ध्यान रखना अगर आप लिमिट के साथ यूज कर रहे हो तो। ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स आपको पता चल गया कैसे निकाल सकते हैं हम, PL/SQL में आपको डिफरेंस पता चल गया। तो बेसिक आपका तैयार हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चलिए, मैं अटेंडेंस लेती हूँ आपकी।